Welcome to all viewers in this YouTube channel. Today I will teach a new poem, Class 4th, textbook Marigold, English textbook, unit number 3 and chapter number 5. Unit number 3 and chapter number is 5. Chapter 1 to 4 completed. You can watch other videos, chapter 1, chapter 2, chapter 3 and chapter 4. And this poem number 5, poem name is Run. Run means a competition, C-O-M-P, C-O-M-P, C-O-M-P-E-T-I-T-I-O-N. A competitions who see, a competitions to see who runs the fastest. Who runs the fastest? Okay, a competition to see who runs the fastest. Understood? A competition to see who runs the fastest. That means run. Run is a competition. Okay, आपने सुना होगा 100 मीटर, 200 मीटर, 100 into 4 मीटर रिले रेस, है ना, हर्डल रेस, बहुत सारी रेसेस होती हैं. ओके, बहुत सारी रेसेस होती हैं. रन, तो रन मीन्स दौड़ना. रन मीन्स क्या होता है? दौड़ना. और जिसमें दौड़ा जाता है वो कंपटीशन होता है रेस, R-A-C-E, 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 रेस. okay, R-A-C-E. okay students, so we should walk or run every day. We feel healthy, our body feel healthy. जब भी सुबह शाम जब भी टाइम मिले दौड़ना इज़ अ गुड हैबिट. रनिंग करना, वॉकिंग करना इज़ अ गुड हैबिट. योग, प्राणायाम. एंड आफ्टर दैट we can deep breathe, inhaling through our nose. Hold till count of 5. 1 2 3 4 5. 5 तक रुकना है. उसके बाद release the air through your nose, जैसे और release करना है. So repeat it 5 times and after that we can stretch our body. okay, like that, arm stretch, this one, arms stretch, okay, this one, and up, sideways. okay, we should stretch our body so we feel healthy. We feel healthy. So this poem related to run. okay, so read and enjoy this poem. Everybody ready? Let's enjoy. Read and enjoy this poem. Poem name is Run. Poem name is Run. Away from the city and into the sun, away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. Run in the raindrops, run beneath the trees. Run in the raindrops, run beneath the trees. Run little races with each little bridge. Run little races with each little bridge. Run down the hillside, run up the lane. Run down the hillside, run up the lane. Run through the meadow, then run back again. Run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day. Run to the country, away, away.
Okay, now we together enjoy this poem. Okay, are you ready? Start. Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. Run in the raindrops, run in the raindrops, run beneath the trees, run beneath the trees. Run little races with each little breeze, with each little breeze. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day. Run to the country, away, away. Very good. So you can practice it 4 or 5 times. So you can learn it poem. Away from the city. Okay, away from the city. In this poem, poetess, poet का जेंडर अपोजिट होता है poetess, POETESS, poetess. Okay, poet means होता है कवि, poet means कवि, poetess means कवयित्री. Okay, कवयित्री. ओके, इसका जेंडर चेंज होता है, पोएटेस. इस कविता में कवयित्री बच्चों को शहर से दूर गांवों को और दौड़ने और आनंद करने को कहती है. जो कवयित्री है वो कहती है कि शहरों से दूर दौड़ते रहो और आनंद लेते रहो. वह उनको धूप में, बारिश की बूंदों में, पेड़ों के नीचे जो हवा चल रही है उसके साथ दौड़ लगाने के लिए कहती है. रन डाउन द हिल साइड, जो पहाड़ी की ढलान है और स्ट्रीट है, गलियां हैं, घास के मैदान हैं, उनमें दौड़ने के लिए कहती है. कवयित्री उन्हें सारे दिन दौड़ लगाने के लिए कहती है जिससे कि वे खुश रहें, मौज मस्ती करें. ओके, इसका ये समरी है बच्चों. ठीक है, इसका मीनिंग अब देखते हैं. अवे फ्रॉम द सिटी, अवे मतलब होता है दूर. अवे मीन्स क्या होता है? दूर, दूर. एंड मीनिंग इन इंग्लिश फार ऑफ बोलेंगे, फार ऑफ. ओके, क्या बोलेंगे? फार ऑफ. फ्रॉम द सिटी, सिटी का मीनिंग सबको पता है. वी आर लिविंग इन जयपुर सिटी, वी आर लिविंग इन जयपुर सिटी. जयपुर सिटी में रहते हैं ना. सिटी मतलब शहर, सिटी मीन्स शहर. एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री. इनटू द सन, सन मीन्स होता है सूरज. तो सूरज की जो धूप होती है, उसकी रोशनी होती है. आउट टू द कंट्री, और देश के बाहर. आउट मीन्स बाहर, कंट्री मीन्स देश. कंट्री मीन्स क्या होता है? देश. देश के बाहर, शहर से दूर, देश के बाहर और सूरज की किरणों में दौड़ो दौड़ो दौड़ो, है ना. इस शहर से बाहर और देश से बाहर, शहर से दूर, सूरज की किरणों में दौड़ना है. रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन मतलब दौड़ना, इन द रेन ड्रॉप्स मतलब बारिश की बूंदें. रेन ड्रॉप्स मीन्स बारिश की बूंदें. रन नीथ द ट्रीज, नीथ मीन्स होता है अंडर. अंडर मतलब नीचे, सबको पता है अंडर नीचे. रन नीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे. रन लिटिल रेसेज विथ ईच लिटिल ब्रीज, ब्रीज मीन्स हवा, ठंडी हवा चलती है, उसके साथ दौड़ लगाना, उसके साथ दौड़ लगाना. रन डाउन द हिल साइड, हिल साइड मतलब पहाड़ी की ढलान. पहाड़ी की जो ढलान होती है उसको बोलते हैं हिल साइड, पहाड़ी की ढलान. द साइड ऑफ हिल, है ना. जैसे पहाड़ी होती है ऐसे, तो उसकी जो साइड होती है ये वाली, उसको बोलते हैं ढलान. ओके, ये. रन अप द लेन, रन अप द लेन, लेन मीन्स स्ट्रीट और अ नैरो रोड, गली. स्ट्रीट, स्ट्रीट, गली. Then run back, run through the meadow, or meadow means a field of grass, a field of घास का मैदान, घास का मैदान, घास का मैदान. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? देन रन बैक अगेन, और वापस आने पर भी दौड़ते रहो. रन एंड बी मेरी ऑल थ्रू द डे, रन एंड बी मेरी.
दौड़ते रहो, खुश होते रहो, ऑल थ्रू डे, पूरे दिन भर दौड़ते रहो, ठीक है, और खुश होते रहो। मेरी मीन्स खुश, हैप्पी, आनंदित, आनंदित होना। रन टू द कंट्री, अवे अवे अवे, रन टू द कंट्री, और दूर दूर पूरे देश में दौड़ते रहो, ठीक है। यहाँ पे जो पोइटेस है उसने विलेजेस की ओर इशारा किया कि विलेजेस, गाँव की तरफ दौड़ना। अवे अवे, दूर दूर, अवे मीन्स दूर, ठीक है। तो ये इसकी मीनिंग हो गया। मीनिंग इसका, शहर से दूर सूरज की किरणों में, देश के बाहर दौड़ना दौड़ना दौड़ना। बारिश की बूंदों में दौड़ो, पेड़ों की छाया में दौड़ो, हल्की मंद समीरों में छोटी छोटी दौड़ें दौड़ो, टीलों से नीचे दौड़ो, गलियों में ऊपर दौड़ो, घास के मैदानों से होकर वापस आने पर तुम दौड़ो, संपूर्ण दिन दौड़ो और खुश रहो, दूर दूर देश में दौड़ो। ठीक है बच्चों, तो ये पोएम का मीनिंग हो गया। आप इसको प्रैक्टिस करना है, लर्न करना है। ओके, अब इस पे अपन न्यू वर्ड्स देख लेते हैं इससे के। और ओके, दीज आर न्यू वर्ड्स ऑलरेडी वी डिस्कस्ड। रेन ड्रॉप्स, नीथ, RAINDROPS, raindrops, raindrops. Repeat with me 5 times. Raindrops, raindrops, raindrops. Okay, repeat. Neath, 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 neath. Breeze, 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 breeze. Hillside, 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 hillside. Meadow, 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 meadow. Mary, 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 Mary. Okay. रेनड्रॉप्स, बारिश की बूंदें। नीथ, अंडर द ट्री, अंडर नीचे। ब्रीज, हल्की हवा, ठंडी हवा। हिल साइड, पहाड़ी की ढलान। मीडो, घास के मैदान। मैरी, खुश होना, आनंदित होना। मीनिंग हम देख चुके हैं। तो ये न्यू वर्ड्स हैं, 1 पेज हैंड राइटिंग है, ये आपको अपनी नोटबुक में करनी होती है। न्यू वर्ड्स के मीनिंग, 700 मीनिंग्स लिखने हैं, और 1 पेज हैंड राइटिंग, ये तो आपको करना होता है। अब इस पोएम में अपन इसके मीनिंग्स देखते हैं कुछ। मैं आपको पिक्चर्स दिखाता हूं। ओके, दिस इज रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स। ओके, बारिश की बूंदें, रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स मतलब बारिश की बूंदें, बारिश की बूंदें। देखो, बारिश की बूंदें आप देख रहे हैं, ठीक है। रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें। रेन ड्रॉप्स मीन्स बारिश की बूंदें। नेक्स्ट देखिए, नीथ द ट्रीज चिल्ड्रन आर running. Neath the trees children are running. You can see in this picture, children are running neath the trees. तो ये पेड़ है, इसके नीचे का जो हिस्सा है यहाँ पे अंडर, इसको बोलते हैं नीथ, beneath. ओके, नेक्स्ट इज हिल साइड। देख लीजिए, ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, देख रहे हैं ना आप, और इसकी ये ढलान। तो इस ढलान की तरफ दौड़ना, ढलान से दौड़ना, है ना, ये है ढलान, ठीक है, पहाड़ी की ढलान। द साइड ऑफ हिल, द साइड ऑफ हिल। नेक्स्ट इज लेन। यस, यू कैन सी हियर, दिस इज लेन, दिस इज लेन। स्ट्रीट, स्ट्रीट, लेन, गली। अ नेरो रोड, अ नेरो रोड। ओके, एंड दिस आल्सो मीडो, घास के मैदान। ये कंप्लीट पूरा क्या है, घास का मैदान। अ फील्ड ऑफ ग्रास, मीडो, MEADOW, दैट मीन्स अ फील्ड, FIELD, फील्ड of grass, a field of grass. Okay, meadow. And these are mountains,
Okay, mountains. These are mountains, trees, clouds, sky. Okay, understood? Now we will discuss about opposite words in this poem. Okay, number one, I will write here. I will write. I will write here or underline. First, I will highlight here. Away, city. You think this opposite word and write in comment box. Out, in, down, up, back, front, merry, sad, little, big. ओके, चलो तो लिखते हैं अभी. AWAY, away. Your answer is near. City, CITY, city. Village. In, out. Up, down. Back, front. Merry, sad. Little, big. Away, near, away, near, away, near. City, village, city, village, city, village. In, out, in, out, in, out. Up, down, up, down, up, down. Back, front, back, front, back, front. Mary said, Mary said. Little, big. So प्रैक्टिस करना है इसको 3 to 4 टाइम्स तक प्रैक्टिस करना है. ओके, एंड इसके जो न्यू वर्ड्स हैं उनको भी आप प्रैक्टिस करेंगे. न्यू वर्ड्स के लिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कौन कौन से आए थे इसमें. न्यू वर्ड्स देखिए, कंट्री आपको देखना है. रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदे. कंट्री मीन्स देश, बारिश की बूंदे. ब्रीज, हिल साइड, मीडो एंड मैरी. ठीक है, ये न्यू वर्ड्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए बच्चों. चलो आगे चलते हैं. दिस पोएम रिटन बाय मैरी डोंट. मैरी डोंट, मैरी डोंट. 1 पेज हैंड राइटिंग करना है, न्यू वर्ड्स करने हैं. ठीक है, अपोजिट्स हैं, लर्न करने हैं. यू कैन राइट आल्सो, यू कैन ऑल्सो राइट इन योर नोटबुक. Okay, you can see this picture. This is a village picture. Okay, this is village picture. Okay, reading is fun. Question number 1, reading is fun. Question number 1, reading is fun. Reading is fun. Okay, what does the poem tell us to do? Understand the sentence. What does the poem means कविता, tell us to do. tell us मतलब बताना, tell मतलब बताना, us मतलब हमें, करना, do मतलब करना, क्या करने के लिए बताती है या क्या कहती है. ये पोएम जो है इससे हमें क्या पता चला कि हमें क्या करना चाहिए. योर आंसर इज द पोएम tells us to run. The poem tells us to run. The poem tells us to run away from the city. Away from the city. Away from the city. Okay, away from the city, out to the country, है ना, ये जो प्लेसेस हैं.
So the poem tells us to run away from the city and be happy. Be happy. Okay. नंबर 2 देखिए, write about the places where the poet wants us to run. इसमें कौन सी प्लेस है जहाँ पे पोइट जो है वो दौड़ने के लिए कहता है? वांट्स, पोइट चाहता है कि वहाँ पर दौड़े। कौन कौन सी प्लेसेस आई हैं? ओके, आंसर यहाँ से लिख लेते हैं। द पोइट wants us to run away from the city, away from the city, away from the city, out to the country, out to the country, run in the raindrops, run in the places, places पूछ रहे हैं ना? ओके, run in the raindrops, run in the raindrops, run neath the trees, run neath the trees. Okay, run neath the trees, down the hillside, down the hillside, up the lane, and through the meadow, through the meadow. ओके, ये इसका आंसर हो गया। डाउन द हिल साइड, अप द लेन, थ्रू द मीडो। ये जो पोएम है, इस पोएम में आप देखेंगे ना तो इसका आंसर यहीं पे मिल जाएगा। पैराग्राफ नंबर 1 और 2 में देखिए, अवे फ्रॉम द सिटी, आउट टू द कंट्री, रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन इन द ट्रीज, ओके, रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन, रन थ्रू द मीडो, देन रन बैक अगेन। तो ये कहाँ कहाँ दौड़ने के लिए कहता है? सिटी से बाहर, कंट्री, रेन ड्रॉप्स, हिल साइड, मीडो, लेन, है ना, इन सब में दौड़ने के लिए कहता है। ये जो प्लेसेस हैं यहाँ दौड़ने के लिए कहता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये रीडिंग इज फन आपको नोटबुक में करना है, रीडिंग इज फन नोटबुक में करना है। ठीक है, एंड लेट्स टॉक, लेट्स टॉक में क्या है देखिए, लेट्स टॉक। डू यू लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट? डू यू लाइक टू प्ले? योर आंसर इज yes, very good. Do you like to play? Everyone like to play, everyone likes to play. And run about, and दौड़ने के बारे में, आपको दौड़ना अच्छा लगता है? क्यों लगता है? ठीक है, इसका आंसर आप अपने से देंगे। ओके, आपको दौड़ना अच्छा लगता है और क्यों लगता है, इसका आंसर आप अपने से देंगे। ठीक है, सो क्योंकि जब दौड़ते हैं ना तो सबसे बड़ी बात है कि जब हम वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, तो हमारा जो बॉडी है वो हेल्दी रहती है, बहुत हम स्वस्थ फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, हमें फ्रेशनेस फील होती है, आनंद आता है, मज़ा आता है ना। तो इसका आंसर आप देंगे। ठीक है, नंबर 2 देखिए क्या है, रनिंग इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज। ओके, रनिंग इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज। Name any 3 games that you play in which you have to run. This is homework. Okay, let's talk. Number 1, number 2. Running is a very good exercise. Everyone knows about running is very good exercise. Name any 3 games that you play in which you have to run. And 3 games के नेम आपको बताने हैं जिसमें आप दौड़ते हैं। So जैसे सपोज सबसे पहला तो रेस हो गया, रेस कंपटीशन। नंबर 2 में आप क्रिकेट ले सकते हैं, उसमें भी दौड़ना पड़ता है, क्रिकेट। हाँ, फुटबॉल,
दौड़ना पड़ता है ना इनमें, क्रिकेट, फुटबॉल, रेस, इन सब में दौड़ना पड़ता है। और बहुत सारे गेम है, आप देखिए आपको कौन सा अच्छा लगता है, उसके बारे में आप बताइए। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। when you run fast when you run fast what do you feel is happening to your body? when you run fast, जब आप तेज दौड़ते हैं, run fast मतलब तेज दौड़ना, what do you feel is happening to your body? आपकी बॉडी, आपका शरीर कैसा फील करता है? सो आपकी जो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, हार्ट जोर जोर से धड़कता है ना, इसकी जो हार्ट की अपनी जो, और ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है, ब्रीथिंग, स्वेट स्टार्ट कमिंग, पसीना आना शुरू हो जाता है, बॉडी वार्म अप हो जाती है, शरीर गरम गरम सांसें आती हैं, है ना। सो ये सब चीज़ें, ये तीनों आप तीनों ये होमवर्क में करेंगे बच्चों। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये आपको ही करना है, क्योंकि इसके आंसर सबके अलग अलग होंगे, इसलिए सब बच्चे अपने अपने आंसर लिखेंगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्पेशली आई कैन आस्क इन एग्जाम। ओके, सो रेडी, 1 2 3 दिस क्वेश्चन यू विल राइट इन योर होमवर्क इन नोटबुक HW। ओके, मैंने बता दिया कैसे करना है। And if you like this video, please share this, subscribe and comments। जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। सभी बच्चों के कमेंट्स पढ़े जाते हैं, सभी बच्चों के कमेंट्स पढ़ के उसके आंसर भी दिए जाते हैं। किसी को कुछ डाउट होता है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो बनाने का पर्पज़, जो बच्चे क्लास नहीं ले पाते हैं तो वो इस वीडियो के माध्यम से क्लास ले सकते हैं। इसमें वही चीज़ पढ़ाई जाती है जो आपकी क्लास में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अगर आप डिफ़िकल्टीज है क्लास लेने में तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा। ओके, लेट्स मूव। से अलाउड, नंबर 3, से अलाउड। एंड वन मोर थिंग हियर, आई विल प्रोवाइड PDF, this chapter PDF, audio clip and question answer PDF format. I will share in description link, so you can go to description and you can download from there. बट उससे पहले आपको ये वीडियो पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले जो वीडियोज़ हैं, बाकी जो वीडियोज़ आएंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। से लाउड, beneath, BENEATH, so every word 5 times you will repeat, beneath, 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 beneath। okay, मतलब पता है आपको, अंडर। ब्रीज, 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 ब्रीज। मीट, 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 मीट। फियर, 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 फियर। ईच, 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 ईच। मिडो, 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 मिडो। ओके, से अलाउड जोर से बोलना होता है, तो आप अपने घर में प्रैक्टिस करो इन शब्दों को बोलने की। बिनिथ, ब्रिज, मीट, फियर, ईच, मिडो। ओके, नेक्स्ट, लेट्स स्पेल। नेक्स्ट इज पेज नंबर 40। टेक्स्ट बुक आपके पास तो आप टेक्स्ट बुक आप ओपन करके रखिए साथ साथ में, इसके लिए आप बहुत ही आपको सहायता मिल जाएगी, उससे हेल्प मिलेगी। सम लेटर्स आर मिसिंग इन ईच वर्ड, सम लेटर्स आर मिसिंग, कुछ लेटर मिसिंग है सभी वर्ड में। राइट डबल ई और ई ए इन ईच वर्ड, या तो डबल ई आएगा या फिर ई ए, आइदर डबल ई और ई ए, इनमें से कोई एक आएगा। नंबर 1, इफ यू नो द आंसर प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, TR E E double E, trees। PLEASE, please। Number 3, TEASE, tease, tease मतलब होता है बच्चों चिढ़ाना। टीज मतलब क्या होता है? चिढ़ाना, चिढ़ाना। ठीक है। टीच, TEACH, टीच मतलब पढ़ाना, टीच। स्लीप, SLEEP, स्लीप। बीप, BEEP, बीप। फिट, FEET,
ई टी, फिट, मीट, एम डबल ई टी, मीट, ओके। तो डबल ई ज़्यादा में आया ना, 1 2 3 4 5, 5 में डबल ई और 3 में ई ए, ओके। ट्रीज, प्लीज, टीज, टीच, स्लीप, बीप, फीट, मीट, ओके। टीज मीन्स चिढ़ाना। नेक्स्ट, दिस इज फॉर योर होमवर्क, okay. Now add more words with double E and EA and put them inside the bubbles. Now you will find, you will think some words they have double E and double EA, either double E or EA. Number one, I think we start from body parts. Teeth, T double E T H, F double E T, fit, K N double E, knee, okay. S double E C, okay. Geese, G double E S E, geese, okay. Sweet, S W double E T, sweet. बहुत सारे हैं, आप अपने आप सोचिए और लिखिए। ई ए में E A R H E A D, है ना। इसमें देखो सीड भी होता है, S double E D, सीड, ओके। स्वेट, S W E A T, स्वेट, ओके। S E A C, समुद्र, इसका मतलब क्या होता है, समुद्र, और इसका मतलब होता है देखना, सी सी, ओके, सी सी, चेंज होते हैं, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपको लिखने हैं, फाइंड आउट कीजिए। जैसे इसमें हीट, H E A T, हीट, चीप, C H E A P, चीप, ट्रीट, T R E A T, ट्रीट, वीट, W H E A T, वीट, बहुत सारे, ओके। तो ये होमवर्क में करेंगे आप अपने से, आपको जो वर्ड्स आते हैं आप अपनी टेक्स्ट बुक की हेल्प ले सकते हैं। यू कैन हेल्प फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, उसके जो चैप्टर्स हैं उनमें से फाइंड आउट कीजिए, ओके। लेट्स लिसन, लेट्स लिसन, सुनना है। नंबर वन, say the words aloud one by one. Say the words aloud one by one. Follow the instructions and move your body accordingly. Okay, move your body accordingly. Shoulders, move them up and down, up and down, up and down, up and down. Okay. Feet, walk forward and backward, forward, backward, forward, backward. Okay, forward. ये अपोजिट्स भी है, देखो, अप डाउन, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। रन, फास्ट, स्लो, फास्ट एंड स्लो, फास्ट एंड स्लो, फास्ट एंड स्लो। हैंड्स, मूव देम लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट राइट, ऐसे मूव करना है, दोनों हाथों को मूव करना है, ठीक है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ओके। लेफ्ट का अपोजिट राइट, स्लो का फास्ट, फॉरवर्ड का बैकवर्ड, अप का डाउन। तो इंस्ट्रक्शन ये 4 शोल्डर्स, फीट, रन, हैंड्स, एक्सरसाइज पार्ट सही है। लेट्स लिसन, तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि जब रनिंग करते हैं ना, अपन दौड़ते हैं, तो उसके बाद एक्सरसाइज करना, उसके लिए स्ट्रेच करना बॉडी को बहुत जरूरी है ना, ओके। नाउ नंबर 2 देखिए, नाउ जंप, होप, मार्च एंड टिप टॉय, टिप टॉय। अब ये जंप कैसे करेंगे आप, हॉप, जंप मतलब कूदना होता है, हॉप मतलब छलांग, ओके। हॉप, छलांग लगाते चलना, हॉप, जैसे मेंढक, फ्रॉग, फ्रॉग हॉप करता है ना, कूदता है। मार्च मतलब चलना, जैसे आर्मी जो होती है वो, लेफ्ट राइट, लेफ्ट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट, सो ऐसे चलना होता है, ठीक है। so, ये आपको करना है। टिप टॉय, टिप टॉय मीन्स, टॉय क्या होती है पता है ना, जो अपनी लेग्स होती हैं, लेग्स के जो फिंगर्स होते हैं ना, टॉयज बोलते हैं उनको, ठीक है। टिप टॉय, तो टॉयज पे चलना, एकदम पैर के पंजों पे, पंजों पे चलना, टिप टॉय, टिप टॉय, ओके।
तो ये एक्टिविटीज़ आपको करनी है, इसको कुछ नोटबुक में नहीं करना, ये आपको एक्सरसाइज के लिए ये आपको करना है, ठीक है। आप करेंगे, आप अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं चलते हुए और वो शेयर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, लेट्स राइट। नेक्स्ट इज पेज नंबर 41। पेज नंबर 41, लेट्स राइट। Answer the questions by looking at the picture on the opposite page. Answer the question by looking at the picture on the opposite page. Okay, एक पेज पे पिक्चर्स दी हुई है, उसके बारे में आपको आंसर करना है। पेज नंबर 43 पे आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं। ओके, पेज नंबर 43 ये देखो, है ना, 1 2 3 4 5 6 पिक्चर्स दी हुई हैं, तो उनका आंसर हमें करना है। नंबर 1 देखते हैं अपन क्या है। व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर 5? व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर 5? तो पिक्चर 5 में क्या हो रहा है, ये देखिए, डाइविंग, पानी में कूद रहा है कोई, डाइव करना, डाइव, DIVE मतलब गोता लगाना, डाइव। तो पिक्चर 5 में द गर्ल इज डाइविंग इनटू द वाटर, द गर्ल इज डाइविंग इनटू द वाटर। ओके, द गर्ल इज डाइविंग इनटू द वाटर। पिक्चर 5 में ये देखिए, द गर्ल इज डाइविंग इनटू द वाटर, द गर्ल इज डाइविंग इनटू द वाटर। अब देखो क्या पूछता है, व्हाट इज मोहन प्रैक्टिसिंग इन पिक्चर 4? पिक्चर 4, ओके, पिक्चर 4 पे आते हैं अपन, देखते हैं। ओके, सो प्रैक्टिसिंग जंपिंग, हाई जंप, ही इज प्रैक्टिसिंग हाई जंप। तो 4th अपन लिखते हैं इसमें, ही इज PRACTISING, he is practicing high jump, he is practicing high jump. नंबर 2 देखिए, what are Anil and his friends pulling in picture 3? पिक्चर 3, टग ऑफ वॉर, रसाकसी कर रहे हैं ना, पिक्चर 3 में देखिए, टग ऑफ वॉर। तो यहाँ पे लिखेंगे, दे आर पुलिंग Anil, what are Anil and his friends pulling in the picture? They are pulling a rope. पुलिंग मतलब होता है, पुल मतलब खींचना होता है बच्चों, पुल, PULL पुल, और उसका अपोजिट होता है पुश मतलब धक्का देना। जब भी अपन मॉल्स में जाते हैं ना, देखते हैं ना, वहाँ पे जो डोर होता है उस पर लिखा रहता है PULL और PUSH, पुश मतलब धक्का देना और पुल मतलब खींचना, पुश मीन्स धक्का देना। सो व्हाट आर अनिल एंड हिज फ्रेंड्स पुलिंग इन पिक्चर 3? दे आर पुलिंग अ रोप, नंबर 3 देखिए, वेयर आर द बोट्स रेसिंग इन पिक्चर 2? वेयर आर द बोट्स रेसिंग इन पिक्चर 2? पिक्चर 2 में देखिए, there are two boats, okay, there are two boats racing, there are boats are racing in the river, boats, BOATS, boats are racing in the रिवर, ओके, रिवर में दौड़ लगा रही हैं, है ना, रेस कर रही हैं। व्हाट आर द बॉयज डूइंग इन पिक्चर 1? पिक्चर 1 में क्या कर रहा है, पिक्चर 1 में बॉयज क्या कर रहे हैं? पिक्चर 1 में आई थिंक वॉकिंग है ये, या रनिंग, मे बी रनिंग। बॉयज आर रेसिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, बॉयज आर रेसिंग और रनिंग। ओके, व्हाट आर द गर्ल डूइंग इन पिक्चर 6? पिक्चर 6 देखिए,
पिक्चर 6 में क्या है? पिक्चर 6 में स्विमिंग है ना, स्विमिंग। तो क्या लिखेंगे? दे आर स्विमिंग, दे आर स्विमिंग, SWIMMING। स्विम मतलब होता है तैरना, स्विमिंग, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे देखो ING वाले शब्द होता है, ING है ना। ये कंटिन्यूस एक ग्रामर की एक क्लास लूँगा मैं आपकी, तो उसमें मैं आपको ING का यूज़ बताऊँगा, यूज़ ऑफ ING। ओके, इसको भी छोड़ देते हैं वरना चैप्टर लंबा हो जाएगा अपना। Now make one more question for each picture. Write the question in the space below each picture. Use how many, what are, where are, how, why to make questions. इसका मतलब ये है कि आपको कुछ क्वेश्चंस बनाने, क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। क्या फ्रेम करने हैं? क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। और जो क्वेश्चंस स्टार्ट कहाँ से होंगे? हाउ मेनी से, व्हाट आर, वेयर आर, इज, हाउ, वाई। ओके, इनसे हमें क्वेश्चन शुरू करना है। तो देखते हैं, नंबर 1 के लिए बताते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर रेसिंग? हाउ मेनी बॉयज कैन यू सी इन द पिक्चर? हाउ मेनी बॉयज कैन यू सी इन द पिक्चर? How many boys you can see in the picture? How many boats can you see in the picture? क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है ना, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। What are the boys doing in the picture? Number 3, what are the boys doing in the picture? Number 4, in this, इसमें क्या कर रहा है? फोर में क्या लग रहा है? जंपिंग। What is the boy jumping over? What is the boy jumping over? Number 5, where is the girl diving from? Where is the girl diving from? And last one, how many children are swimming? How many children are swimming? Okay, so I think this chapter is completed now. For your notebook, reading is fun. Okay, and reading is fun and let's spell. Okay, reading is fun नोटबुक में करना है, और लेट्स स्पेल ये वाला नोटबुक में करना है, और ये वाला नोटबुक में करना है। ठीक है, 1 पेज हैंड राइटिंग करना है और न्यू वर्ड्स करने हैं। इज इट क्लियर? इसके अलावा से अलाउड प्रैक्टिस के लिए है, और लेट्स लिसन वाला प्रैक्टिस के लिए है, एंड लेट्स राइट यू विल आल्सो राइट इन नोटबुक। ये भी आपको नोटबुक में करना है। ठीक है, ये भी आपको नोटबुक में करना है। इसके बाद पिक्चर्स वाला है वो आप टेक्स्ट बुक में कर सकते हैं। ये जो पिक्चर्स वाला क्वेश्चन नंबर 2 है ये आप डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में कर सकते हैं, उसको नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ये चैप्टर क्लियर हो गया। इस चैप्टर में बच्चों यही बताया गया है कि जो रेस कंपटीशन होता है, रेस जो कंपटीशन है
उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, और रेस से हमारी बॉडी है वो कैसे होती है, दौड़ लगाने से या वॉक करने से हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है क्या, कैसी रहती है, ये सब आपको पता है। ठीक है, तो इस समय ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जब भी दौड़ते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, बॉडी स्ट्रेच कीजिए। ठीक है, सो दिस चैप्टर नंबर 5 is completed now. If you have any difficulty, any doubt, you can ask, you can write in comment box. Okay, so I will reply there. घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल। थैंक यू।